Namaskar dosto, welcome to my channel. Friends, if you have not yet subscribed to my channel, please subscribe and click the bell icon for getting regular notification. This is the pre-market report video for 23rd December 2025. That is for Tuesday. We are going to witness the Nifty expiry. So in this video, we are going to cover F analysis, post-market analysis, chart review, top gainers, losses, technical view outlook, pre-market review, and at the end, we are also going to review the Nifty options and analysis as well. So in this video, we are going to cover everything, including global and local cues as well. Let us start from our last trading day. What happened in our market? That is for 22nd December, Monday. So, needless to say, if you look at Nifty, Sensex, Nifty Bank, Midcap, everywhere you are seeing very good greenery. Let us go and understand from the chart and what are the levels we should look for tomorrow. Let us start the review from the chart. We are in Nifty chart. Hope you remember during our last pre-market review, I have asked you, I've shown you these two channels. So this channel is no longer valid, so I'm deleting the downside channel. And you can see this was a channel we have created during our last pre-market review video, and market exactly moving under that channel. So Nifty closed 200 plus point 206 points, and 26,172 is the closing point. So what we need to look for tomorrow, if market is breaking this channel, then then only you should go for long. That this is coming around 26,200. For shorts, two levels I can tell you. Are you seeing the middle point, a dotted line here? So here you can short. That is coming around 26,130. If it breaks 26,130, it should come down to all the way 2640 or 2650, you can see. And another shorting level is that, so the moment it breaks below 150, then also you can think of shorting. I hope the levels are very clear for you. So you make this channel in your chart, this will help you. And you see any bounces from the midpoint or the down point, you can consider it as a buying opportunity. Let us go to Bank Nifty. In Bank Nifty also, I'm using a 4-hour time frame. And what you need to do is that make a trend line this way. Till the time Bank Nifty is above, trading above this trend line, you shouldn't consider it shorting. The moment it breaks below this trend line, this comes around 59, 150, 200. Okay, yeah. So you can consider for shorting. So you can get a good downside target even up to 58,700. I hope this is clear. Let us also take the shorter time frame and see. In the shorter time frame, here also make another trend line. Let me pick trend line. Make this trend line. Till the time Bank Nifty is holding above this trend line, you shouldn't short it. The moment it breaks, short it. So this comes around 59,280 or 250. You take it as a round. So currently it is in 59,304. If it breaks below 59,250, you consider shorts. If I add the moving average, exactly the moving average is all telling the same thing. See, 50 MA, if it breaks around 59,250. Okay, let's go to Sensex. Sensex also a different channel I'm seeing, and this is a 45 minutes time frame. In Sensex, I'm seeing an upward sliding, the slanting channel here. See, this is moving up. So with Sensex tomorrow, I think you'll get very good trade in Sensex. Tomorrow, anytime Sensex breaks this particular channel, parallel channel, consider shorting. And for longs, I'm not seeing much target. Okay, if it breaks above 85, 800, then only this particular channel will be broken. So trade accordingly. In mid-cap Nifty, so mid-cap Nifty, I'm using a 5-minute time frame. Mid-cap Nifty is very easy. The moment it breaks below 50 EMA, consider shorting. For longs, it is above 14,000 only. It should
sustain at least a 15 minutes candle closing needed above 14,000, then only consider longs. 50 में जैसे टूट जाते हैं आप शॉर्ट के लिए तैयार रहना. फर्स्ट टारगेट 13,920 फॉलोड बाय 13,865. इंडिया विक्स को देख लो तो ये जाली बनाते जा रहे हैं. जब तक इंडिया विक्स 11-12 तक नहीं पहुंचते ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर के लिए ज़्यादा फायदेमंद नहीं है हमारा मार्केट. चाहे हम लोग ट्रेड अपना डायरेक्शन में आ भी गया तो ऑप्शन प्रीमियम बढ़ेगा नहीं क्योंकि इंडिया विक्स इतना नीचे पड़ा हुआ है. हो सकता है इंडिया विक्स कल का जो एक्सपायरी के चलते हुए ये बढ़ जाएगा. जैसे इंडिया विक्स बढ़ जाते हैं आप लॉन्ग से हट जाना. यूएसडी एनआर में भी आप लोग नज़र मारते हैं. यूएसडी एनआर में फ्राइडे का थोड़ा सा स्ट्रेंथ आया था लेकिन वो स्ट्रेंथ सब खो चुका है. 40 पैसा और गिर गया. तो जब तक जो यूएसडी एनआर में स्ट्रेंथ नहीं आते बैंक निफ्टी ऊपर जा ही नहीं सकते. मेटल सेक्टर में भी वीकनेस देखने को मिल सकता है. आज मेटल सेक्टर अच्छा खासा ऊपर था लेकिन जाते जाते जैसे रुपये में वीकनेस आया गिरते गया. चलिए हम लोग अपना शीट में वापस चलते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं. तो क्रूड में क्या है, मैं बाय ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी अपनाने के लिए बोला. तो क्रूड में अभी क्या है मिडिल ईस्ट बारे में टेंशन चल रहा है. जब तक ये टेंशन जारी है तो क्रूड में शॉर्ट नहीं करना. जब तक ये 5150 को ऊपर है इसको शॉर्ट नहीं करना. गोल्ड और सिल्वर अलग ही दुनिया में चल रहे. तो बड़े खिलाड़ी लोग इसको पंप करते जा रहे, इसको एक भी करेक्शन आने नहीं दे रहे. तो इसको चलना दो. अभी केस में लॉन्ग करना भी खतरा है, शॉर्ट कर ही नहीं सकते क्योंकि एक पॉइंट भी नीचे आने के लिए तैयार नहीं है सिल्वर और गोल्ड. इम्पोर्टेंट डाटा, आज इम्पोर्टेंट डाटा यूएस का कोर पीसी डाटा आना था लेकिन क्या है ये फिर से डिले हो गया. ये अक्टूबर का अभी तक आया नहीं है, अभी दिसंबर चल रहा है. पहले क्या है उनका शटडाउन का कारण ये आया नहीं था. अभी क्या है पोस्टपोन होते जा रहे हैं, पता नहीं कुछ गड़बड़ है. अगर मान लो कोर पीसी डाटा जो सीपी के मुताबिक आया नहीं तो गिरावट आ सकते हैं यूएस मार्केट में. और यूएस का जीडीपी भी कल ड्यू है. तो कल महत्वपूर्ण डे रहेगा लेकिन हमारा ट्रेडिंग डे के बाद ही ये डाटा सब आएगा. तो हमारा निफ्टी एक्सपायरी का इसका कोई संबंध है नहीं. तो हम लोग एफएनओ डाटा के ऊपर एक बार नजर मारते हैं. Those who are new to this channel, how to read this data? Friday means last to last trading day. Monday means last trading day. Total means what positions carried by the market participants, retailers, DA, FA and pros for Tuesday. हम लोग इंडस फ्यूचर से चलते हैं. इंडस फ्यूचर हम लोग देखेंगे तो रिटेलर कुछ 8,700 कॉन्ट्रैक्ट सेल कर दिया लेकिन एफए ने 14,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बाई किया. तो इसके चलते एफए का नेट शॉर्ट घटते हुए पहुंच गया 1.44 lakhs. तो आई वुड से दिस डाटा इज मिक्स्ड बुलिश फॉर टुमारो. प्रोस ने कुछ 5,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल किए लेकिन एफए का अच्छा खासा बाइंग है. इंडेक्स कोर में हम लोग देखें तो यहाँ रिटेलर फिर से 19,000 कॉन्ट्रैक्ट्स सेल करते जा रहे. इसके चलते उसका नेट शॉर्ट पहुंचेगा करीब 1 लाख. एफए ने 41,000 और कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड कर दिए, इसके चलते उसका नेट लॉन्ग पहुंच गया 58,000. प्रोस ने कुछ 22,000 कॉन्ट्रैक्ट सेल किए लेकिन अभी भी इसका 32,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग है. सो आई वुड से दिस डाटा इज मिक्स्ड बुलिश. इंडेक्स पुट में देखेगा तो यहाँ आई वुड से दिस डाटा इज अल्ट्रा बुलिश क्योंकि रिटेलर 1.74 लाख इंडेक्स पुट लॉन्ग ऐड कर दे. इसके चलते उसका नेट लॉन्ग घटते हुए पहुंच गया 1.96 lakhs. और रहा बात एफए एंड प्रोस दोनों सेल करते ही जा रहे हैं. और प्रोस का इंडेक्स पुट अभी क्या है और शॉर्ट से लॉन्ग में पहुंच गया. और स्टॉक फ्यूचर में भी अच्छा कवर एफए उसका लॉन्ग और ऐड करते जा रहे. प्रोस ने कुछ सेलिंग लेकिन ओवरऑल अभी भी डाटा ठीक ठाक है. दिस डाटा इज ऑल्सो मिक्स्ड बुलिश. स्टॉक होल्ड में भी रिटेलर बेरिश जा रहे तो लेकिन प्रोस उसमें बुलिश जा रहे. दिस डाटा इज ऑल्सो मिक्स्ड बुलिश. स्टॉक पुट का डाटा देखे तो यहाँ पे भी रिटेलर बेरिश जा रहे, प्रोस अच्छा खासा बुलिश जा रहे. सो ओवरऑल if I wanted to conclude, summary, retailers are ultra bearish in index options and mixed bearish in stock options. FA and pros both are mixed to bullish in stock and index options. तो इसके चलते हुए क्या है बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होनी चाहिए. तो कैश मार्केट डाटा देखे तो एफडीए ने 4,058 करोड़ का बाइंग किया, एफए ने हल्का सा सेलिंग है
बाकी जितना सेलिंग है ये मुझे लग रहा है रिटेलर ने किया होगा। हम लोग चलते टॉप गेनर्स में देख लेते हैं। अगर हम लोग टॉप गेनर में हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे स्टॉक्स है। जितने भी आईटी स्टॉक्स, मैंने आप लोगों को बोला आईटी स्टॉक्स में अच्छा खासा अपमूव आ सकते हैं। खासकर मैंने दो स्टॉक का नाम लिया था। एक था एचसीएल टेक, देखो कितना अच्छा मूव है एचसीएल टेक में। मैंने बोला एचसीएल टेक में बाय ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी अपना लेना। एक और स्टॉक था सन फार्मा, देखो सन फार्मा में कितना अच्छा मूव आया था। दो स्टॉक मैंने बोला था। तो कल के लिए गया जहाँ जितना भी हेवी वॉल्यूम्स है, आप उसमें अगर डिप आते हैं आप फर्स्ट हाफ में बाइंग के नजरिए में कंसिडर कर लेना। कल स्टील सेक्टर को कल आप अवॉइड ही कर लेना, क्योंकि रुपये में वीकनेस है। तो स्टील सेक्टर में कोई भी उछाल आते हैं आप उसको सेलिंग के नजरिए में कंसिडर कर लेना। टॉप लॉसर में ज्यादा स्टॉक्स है नहीं है, तो कल के लिए क्या है, बजाज फाइनेंस, मैक्स लगा। अगर मैक्स हेल्थ में और भी गिरावट आए तो आप इसको बाइंग के नजरिए में कंसिडर कर लेना। एल एंड डी में भी वैसे ही, और बाकी स्टॉक में कोई रिकमेंडेशन देना नहीं चाहते। लेट अस look at the technical view and outlook for Tuesday, that is we are going to witness the Nifty expiry। दोस्तों जब तक निफ्टी 26,160 के ऊपर है इसको शॉर्ट नहीं कर सकते। जैसे और 26,160 तोड़ दिया आप शॉर्ट कर सकते हैं। 2650 तक आपको टारगेट मिल सकते हैं। लॉन्ग्स के लिए 26,200 के ऊपर आप लॉन्ग खोज लेना, आपको टारगेट फर्स्ट टारगेट 26,270 फॉलोड बाय 26,330 तक मिल सकते हैं। इसका एक बार 26,200 के ऊपर अगर चलना शुरू किया तो शॉर्ट कवरिंग भी आ सकते हैं। तो इसमें सीधी बात है, शॉर्ट्स बिलो 20 EMA ओनली, तो मोमेंट अभी बुलिश है, लेकिन पीसीआर के ओवरबोट टेरिटरी में चला गया इसका। तो इसका मतलब है इसमें एक रिट्रेसमेंट डिप आ सकते हैं, हो सकता है खुलते ही आएगा, तब क्या है इंडिया विक्स भी बढ़ जाएगा, नहीं तो क्या है ड्यूरिंग एक्सपायरी आ जाएगा। बैंक निफ्टी थोड़ा लगाड़ रह गया क्योंकि रुपये में वीकनेस है, इसलिए लगाड़ रह गया। शॉर्ट करना है तो 15,300 के नीचे आप शॉर्ट करना, 15,150 फॉरवर्ड 15,000 तक आपको टारगेट मिल सकते हैं। लॉन्ग्स के लिए 59,350 के ऊपर आप लॉन्ग खोज लेना, 59,500 फॉलो बाय 59,750 तक टारगेट मिल सकते हैं। 59,500 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग आ सकती है इसमें। बैंक निफ्टी लॉन्ग्स 59,350 के ऊपर ही करना, जब तक इसके नीचे आप इसको बेरिश नजरिए, शॉर्टिंग का नजरिए कंसिडर कर लेना। तीसरा इसका अच्छा है। सेंसेक्स में 85,500 के नीचे शॉर्ट करना, आपको 85,300 85,100 तक टारगेट मिल सकते हैं। लॉन्ग के लिए 85,600 के ऊपर ही लॉन्ग खोजना, 85,800 फॉलोड बाय 86,000। एक बार 85,800 के ऊपर अगर चलना शुरू किया तो एक शॉर्ट कवरिंग आ सकते हैं। तो सेंसेक्स में 84,500 का लेवल वॉच करना, इसके ऊपर है तो बुलिश, इसका नीचे है तो बेरिश, और कुछ नहीं। पीसीआर इसका भी ओवर बोट टेरिटरी में चला गया, इसमें भी एक डिप आना बाकी है। मिड कैप में 13,950 के नीचे शॉर्ट करना, फर्स्ट टारगेट 900 फॉलोड बाय 850 तक मिल सकते हैं। जब तक 850 होल्डर्स में बाउंसेस आते रहेगा। लॉन्ग के लिए 14,000 के ऊपर ही लॉन्ग खोज लेना, 1460 14,100 तक मिल सकते हैं। मिड कैप के 14,000 के ऊपर ही अब इसमें बुलिश खोज लेना, इसके जब तक इसके नीचे आप इसको बेरिश नजरिए में देख लेना। पीसीआर इसका भी ठीक है। तो tone is remained to be bullish. No negative news for Indian market other than trade deal uncertainty, and market already factored it. तो view Indian market is fully aligned to global markets। अगर मान लो global market पॉजिटिव है तो हमारा मार्केट भी पॉजिटिव रह सकते हैं। स्ट्रैटेजी है go with the market trend and play level to level only। सो कल के लिए क्या आप दोनों साइड के लिए मोमेंट खेलने के लिए रेडी रहना। निफ्टी एक्सपायरी के चलते मिल सकते हैं आपको। And we'll also look at the Nifty expiry special option chain analysis. So if you look here, Nifty closed above 26,150. So I'm taking the 26,150 as the midpoint. Okay, this is the max pain। जब तक 26,150 के ऊपर है इसको बुलिश नजरिए से देख लेना। अगर हम लोग देखेंगे तो 26,150 में 1.15 करोड़ पुट राइटर्स है, अच्छा खासा पुट राइटिंग है। 26,100 में भी अराउंड 2 करोड़ पुट राइटिंग है। 26,000 पे 1.68 अच्छा खासा पुट राइटिंग नीचे लेवल पे दिख रहे हैं। कॉल राइटर सबसे अग्रेसिव खड़ा हुआ है 26,200 पे। 26,150 पे अराउंड 1 लाख कॉल राइटर खड़ा, अगर मान लो 200 के ऊपर चलना शुरू करते तो ये लोग शॉर्ट कवरिंग के लिए जा सकते हैं। 26,200 में इतना ज़्यादा नहीं है, 1.22 है। अगर एक बार ये लेवल तोड़ दिया तो सीधे 26,250 26,300 तक जा सकते हैं। फिर 26,300 में भी सरप्राइजिंगली कॉन्फिडेंस नहीं है कॉल राइटर का।
अगर मान लो एक 26,200 250 का लेवल अगर तोड़ दिया तो आराम से 26,300 350 तक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो रहा बात प्रीमियम का, 26,200 में ज़्यादा प्रीमियम है नहीं है, एक्सेस प्रीमियम कह नहीं सकते। आप देख लो, इसलिए जो आउट ऑफ द मनी जो भी ऑप्शन बाई करते हैं उनका क्या हाल हो जाते हैं। देखो 200 पॉइंट्स के ऊपर निफ्टी बंद हुआ है, लेकिन 26,200 का ऑप्शन प्रीमियम कितना बढ़ा, ओनली 23 पॉइंट्स बढ़ा है, और 26,300 का प्रीमियम 7 पॉइंट्स बढ़ा है। इसलिए ये जब भी एक्सपायरी का जो करीब पहुंचते हैं एक दो दिन, आप इन द मनी ऑप्शन ही बाई करना, तब जाके आपको अच्छा खासा जो प्रीमियम अगर अप हुआ है तो उनके साथ मिल जाते हैं। सेम वे फॉर पुट ऑल्सो। Yeah, let us also look at the global markets. If you look at the US futures, Dow it is 160 points up, even Nasdaq is also 100 points up. Gift Nifty is indicating flat, but don't look at Gift Nifty now. Tomorrow, if US futures are up, Gift Nifty will also rally because अभी क्या है, बुलिश मोमेंटम में चल रहा है मार्केट, ये मोमेंटम कंटिन्यूएशन रहेगा, नहीं तो बहुत बड़ा नेगेटिव न्यूज़ आना चाहिए। That's all in this video, guys. If you like this video, please subscribe to my channel and like my video. I'll also appreciate all your comments. Thank you.